Mhm. I admit all. Podcast. Good evening, everyone, Good evening. and a very warm welcome to Women in Global Health India Dialogue Series on engagement of frontline health workers in COVID response in India. Let me take a moment to reflect on the journey of women in global health, recognizing more than 75% of the healthcare workforce are women. Yet, they continue to be a minority in the decision-making and leadership space within healthcare. This serves as a motivation to change and bring gender parity in these spaces. And Women in Global Health was founded in 2015 as a global movement. Today, WGH operates in different geographies through its country chapters. Around 9 chapters are in operation and 19 more in the pipeline. The India chapter of Women in Global Health was formed last year to take this agenda forward in India. As COVID-19 spreads across the world, India chapter recognized the crucial role of frontline health workforce and sought to provide a platform to not just share best practices and learn from each other, but also to amplify contribution and highlight concerns and challenges. WGH India Dialogue started with listening to the concerns and challenges of ASHAs, which was done in June. It garnered an overwhelming response, which led us to take the series forward, and we brought in ANMs in July to understand. In August, we brought forth another important panel उन लोग अपना of women. शुरू में ये कर रहे हैं, बता रहे हैं कार्यक्रम क्या है, तो जैसे ही आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं सर virtually to the national platform. Actually, Leaders at the front line, elected PWRs to the Panchayati Raj institutions. This marks part 4 of the WHI Dialogue series in collaboration with Women for Politics and Center for Catalyzing Change, C3. Through this series, we seek to amplify and highlight the contributions of these women PRI leaders and bring forth their concerns and challenges to multiple stakeholders and discuss potential policy responses. One of our collaborating partner for this series, C3, formerly known as Center for Development and Population Activities, India, started working in India in 1987. In the last 30 years, C3 has emerged as a key change-making organization focused on improving condition of girls and women in this country. C3 is committed to equal participation of women in governance and leadership as a step towards building a stronger nation. The other collaborating partner is Women for Politics, an initiative with the aim to improve women's political participation and representation across South Asia through awareness and advocacy. Among other activities, WFP led the Beyond Victims series that highlighted stories of various South Asian women political leaders with an aim to amplify the work of women politicians fighting COVID-19. Today,
We have an excellent panel of amazing women leaders, members of elected women representatives from 4 states, Odisha, Bihar, Jammu, and Telangana, who will be giving us a glimpse of the ground reality. This is the first session in this part 4 of the dialogue series. The key points emerging from today's discussion will feed into next dialogue scheduled on 30th September at the same time, where we will reflect upon the policy level concerns with various state and national level stakeholders. We request you to stay with us through this series and participate in these engaging discussions. With this short note, I welcome you all once again for joining us, and thanks to WFP, C3, and WGHI for putting this series together. Let me take the last few minutes to introduce Sugantha, our moderator for today's session. Sugantha currently engages with the education team at Tata Trust in Andhra Pradesh. She collaboratively runs Women for Politics, an initiative to improve political participation and representation of women in South Asia. Her research areas are women's political rights, gender mainstreaming, and education. She is also a member of Women in Global Health India. With this, I once again welcome all of you and hand over the session to Sugantha. Thank you. Thank you very much, Preeti. I hope everyone is able to hear. Hello. Thank you very much, Preeti. Unfortunately, I was muted in between. So I hope everyone can hear me. Good afternoon to everyone. Before we get into the introductions of our esteemed panel of speakers, I would like to start with just a little brief on women in the Panchayati Raj institutions in India. The 73rd Amendment of the Constitution gave political status to women by reserving 1/3 of its seats to women. This 1/3 reservation policy for women is widely accepted in many states. And in fact, by 2019, we had 19 states that have introduced 50% of reservation for women. Coming to COVID, women representatives in the Panchayati Raj institutions played a very critical role in leading the whole crisis management right at the ground, right from the very beginning of the crisis. While I have had an opportunity to interact apologies again. So while I have had an opportunity to know a lot of works of the women leaders we are going to speak with today, I'm sure you would all want to listen from their, directly from them, the stories of their leadership. I would try to talk in the session in Hindi and English. We have speakers from both the end. We would also have somebody to translate in the chat box, which would be done simultaneously while we have the speakers who would be talking with us. Just to help you all understand the flow of the session, we will have 3 rounds. The first round would focus on understanding the contributions of the women leaders we have today. The second round would talk about the adaptations to their existing work, their leadership that they have shown, and how they've demonstrated their work at the local level. And the third one would be a rapid round where we would like to take recommendations from the speakers. I would go with introductions of the speakers. Our first speaker today is Ms. Akhila Yadav. She became the youngest Sarpanch in the state of Telangana in Madanapuram Gram Panchayat. She has been working with us, the local volunteers
to ensure essential supplies, safe passage for those who are traveling, sanitizing the villages, taking upon the responsibility on herself to maintain the social distancing norms in the village. Our second panelist is Hashma Khatunji. She is a panchayat leader from Chaudhurando block, East Champaran, Bihar. During the lockdown and the unlock phase, Hashma ji has stood up strong on all fronts to make her panchayat corona free, ensured access and utilization of health and nutrition services, especially for pregnant women, lactating mothers, adults and girls, and mothers of young children. She has also proactively worked to raise awareness about domestic violence and gender-based violence related issues, and stood in solidarity to defend the rights of women and girls of our community. We also have our third speaker, Jayanti Pradhanji. She's a Zilla Parishad member in Odisha. She's a very active and dynamic woman. She's an advocate for girls' empowerment and education, as well as improving the healthcare of the people. This is the first time she contested for elections as a Zilla Parishad member and also won. She is considered as an influencer to get things done, and all women especially look to her to address these issues in the village. During COVID, she has took measures to ensure safety and the well-being of her people. She has worked with different groups and different people to work together and make a difference. So let us all welcome them. There is a little button where you can applaud. So let's just give an applaud to all our speakers and welcome all our speakers. Thank you very much. We would now move to round one. And with the round one, so we'll have questions for all speakers. The first speaker would be with Akhila ji, the second would be with Hashma ji, and the third would be with Jayanti ji. That is the flow that we will follow. I just start here and I try to keep my speech in Hindi and English for clarity. कोरोना महामारी के समय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बहुत सारी नई जिम्मेदारियां जो आज तक वो निभा रहे थे उससे ज़्यादा आगे जिम्मेदारियां आई हैं. तो आज हम इन्हीं चर्चा पे इस विषय पे आगे चर्चा करना चाहेंगे. जो हमारी महिला लीडर्स हैं उनके अनुभव से शुरुआत करते हैं. अनुभव और उनकी जो भी दिक्कतें आई हैं उनसे हम शुरुआत करना चाहेंगे. We will start with some questions on response to COVID-19 or Corona of the elected women representatives in Panchayati Raj institutions. So my first question is to Akhila ji. Early in March, even before the lockdown rather, you had closed entry into your Gram Panchayat, and we all have seen your picture of standing outside the village, trying to ensure the social distancing norm. Could you share your experiences of speaking to the local vendors and the sellers and Gram Panchayat residents themselves to curtail and stop the spread of COVID in Madnapuram? Akhila ji. Yes. Hello everyone. My name is Akhila Yadav. At present, I'm serving as Sarpanch to my native village Madanapuram and from Telangana state. Before I begin, I would like to thank each and every one of your team for giving this wonderful opportunity. And about this COVID pandemic, in the initial days, as like everyone, they were focused on a. Yes, Akhila ji, we can hear you.
As like everyone, the first thing we focused on is cleaning the villages. Then we tried to motivate the people to bring awareness among them about the virus, the pandemic situation, and the lockdown rules. Somehow we were able to convince our villagers to follow the rules. But the problem came is in my village, major number of the people has the business of selling the toddy, where for that sake, as the wine shops were closed, people from different villages started coming to my village. I observed that, but in order to stop them, I did not find any option rather than blocking the way, rather than stopping at the entrance itself. So from morning till evening, we used to sit there. We used to inquire every person coming into my village. We used to ask the reasons. We, depending on that, we used to send back few. We used to allow few, and to my surprise, major number of the people were roamed with invalid reasons. Somehow by this method we were able to send back all the people, and we were successful in doing that. And I'm happy to share that till now in my village there is no active corona cases. So in this way it went. And also, apart from our dedication, our hard work, people from all over the state and country supported me in a huge number. Even because of that, also people recognized me after 2 days, 3 days. Even because of that, also people did not came to my village. So in this way, we were successful in handling the situation. Thank you. थैंक यू वेरी मच अकेला जी. मैं अब हिंदी में बात करना चाहूँगी थोड़ी देर. हाशमा जी हैं हमारे साथ एंड मेरा अगला सवाल उनसे ही है. हाशमा जी, आई होप आप मुझे सुन सकते हैं. जी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपसे माफ़ी पहले मांगना चाहूँगी कि हमने काफ़ी कुछ सिर्फ इंग्लिश में ही बात की है, और मैं आपके लिए कुछ छोटी सी समरी भी देना चाहूँगी कि हम हमारे साथ 3 और 2 और एक सरपंच हैं तेलंगाना से, जो सबसे अपने यहाँ की एक वुमन यंग सरपंच हैं, और हमारे साथ जयंती जी भी हैं जो ज़िला परिषद मेंबर हैं उड़ीसा से, और उन्होंने बहुत ही औरतों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है. और हम यहाँ राउंड 1 में हैं, और हमने बस अभी जाना है अखिला जी से कि कैसे उन्होंने अपने गांव में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लोगों से बात कर खुद से हिम्मत कर लोगों का रास्ता रोका है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग निभाएं, कोरोना के बारे में जानें, और एक दूसरे से दूरी जो बना के रखनी है उसे करें. और उसी से आगे बढ़ता हुआ क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना के समय आपने भी लोगों के साथ काम किया, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके साथ काम किया, और आपने कोरोना सेंटर में भी काम किया है लोगों के साथ. जी, मेरा नाम हाशमा खातून, मैं वार्ड सदस्य हूँ, 3 नंबर वार्ड, तिनकोनी पंचायत, छावड़ा धनो प्रखंड, जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण से मैं बोल रही हूँ. जी, कोरोना में तो हर लोग के भी दिक्कत हुआ. जब कोरोना लॉकडाउन जब लग गया तब हर लोग के भी दिक्कत हुआ. जी, दिक्कत होने पर ऐसा बात हो गया कि हर तरह के नुकसानी हर लोग के भी पहुंच गया. ऐसा बात नहीं कि नहीं, पूरा देश में भी दिक्कत हो गया. लेकिन ऐसा कोरोना के लिए सरकार के ऐसा करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं. तो जनता के लिए बहुत अहमियत बात किए हैं, लेकिन रह गया बात कि कम से कम तो हम लोग तो कहेंगे, हमारा तो कोरोना में तो हम लोग बहुत कुछ किए. ऐसे भी गर्भवती महिला लोग के भी 10 आदमी के भी डिलीवरी हम लोग पैदा कराए हॉस्पिटल ले जाकर. परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुआ. जी, इसके बाद में जाने पर कभी सुविधा मिला, कभी नहीं मिला, कभी अपना ऑटो से लेकर जाने पर भी उसी समय में लॉकडाउन की वजह पर बहुत ज़्यादा प्रशासन भी दिक्कत किया. तो हम लोग आशा के साथ में आशा कर लेकर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, उन लोग के डिलीवरी पैदा कराए. बच्चा जो उनका कागज पत्र था वो हम लोग बनवाए. इसके बाद में कई मानिए तो इसमें तो हर चीज़ के भी दिक्कत है, लेकिन कुछ हम कह सकते हैं सर. जी बताइए. कम से कम हमारे कहने के यही मतलब है कि कम से कम
जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने से पहले कम से कम सरकार का कम से कम, हम लोग छोटा मोटा नेता हैं, 500 जनता के हम लोग मालिक हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को भी कोई काम करते हैं तो कुछ ही काम के भी हम अपना राय सलाह कर अपना बैठक कराते हैं अपना वार्ड में। लेकिन रह गया बात कि सरकार के कम से कम इतना बड़ा लॉकडाउन जब लगाना था तो कम से कम 2 महीना का समय दे देना चाहिए कि लोग बाहर से अपना घर चले आते, घर में लोग जो नैहर सासुर के रह गए वो भी अपना घर चले आते, तो इतना तो दिक्कत तो नहीं ना होता। जी जी बहुत परेशानी आशा हुई। जी जी माफ जी करिएगा। मैं चाहूंगी कि हमारा एक और राउंड है जहाँ पे हम सरकार के सुझाव के बारे में भी बात करेंगे, और हम उस पर वापस आएंगे। उससे पहले आपने एक बात कही कि आपने प्रेग्नेंट वुमेन को मतलब अस्पताल तक पहुंचाना, उनके बचाव, जी वो उसमें जो आपने दिक्कतें आपने बात की, मैं जानना जी चाहूंगी उसमें दिक्कत यही क्या है कि दिक्कत। हम लोग दिक्कत यही हुआ कि अब तो घर घर हम लोग घूम कर माने ऐसे भी साफ सफाई के बारे में समझाते रहे। इसके बाद में गर्भवती आशा घूमी तो आशा से लोग नफरत करे, लोग कि आ रही है घर घर कोरोना पटाने, ये समझाने नहीं आती है, तो उनको आशा के हम लोग तसल्ली दिलाएं, उसको उसको भी स्वागत किए, थैली फूल के साथ, ऐसे भी अंग वस्त्र के साथ में उनका भी स्वागत किए। इसके बाद में उनका साथ हम लोग दिए कि चलो लॉकडाउन में तुम्हारा साथ मैं हूँ, चलकर हम लोग आपको डिलीवरी लेकर चलिएगा, तो हम लोग चलेंगे। गए तो जगह पे जगह प्रशासन रोका, ऐसे ही ऑटो से गए, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिला, कभी मिला। अब मानिए तो बार बार तो गरीब आदमी के तो सब लोग का पैसा तो नहीं न था, उसमें जितना हमारा सक्षम था उतना हम लोग अपना तरफ से हेल्प किए। इसके बाद में कोरोना में घर घर घूम के बताएं कि साफ सफाई रहना है, मास्क बंटवाएं, साबुन बंटवाएं। इसके बाद में क्रीति पाउडर जो होता है घर घर छिटवाएं। जी इसके बाद में सोलर के माने लॉकडाउन के बात बता रहे हैं। इसके बाद में मान कर चलिए तो वितरण वैसे लिख वो के दिए, मैंने तो अप्लाई किए तो 40 गो राशन कार्ड आया, अभी 125 गो राशन नहीं आया। सब लोग गरीब लोग मर रहा है भूख से, किसी किसी के घर में भी बहुत तनाव बढ़ रहा है, घरेलू झगड़ा हो रहा है। इसके बाद में घर हिस्सा में जा जा करके समझाएं कि जी समझने की कोशिश कीजिए, जो है जिसमें बांट परोस कर खाइए। जिसके 5 किलो मान के चलिए बच्चा का वजन था, उसको गरीब का 3 किलो वजन हो गया। जो है यदि कुपोषित बच्चा जो होता है, जो विकलांग में आता है, वो बच्चा के तो कोई इनकी पूछिए नहीं है। जो माँ थोड़ा बहुत करती है घर में, लोग कहता है चलो ढील दो, हमारा तो कोई ये नहीं है, वो मरिए जाएगा तो क्या करेंगे। उस पर जी घूम कर उनको समझाए बुझाए जितना तक हुआ। तो राशन कार्ड जिसका नहीं था उन करके लेकर हम लोग गए वहाँ पर, जा करके उन लोग के राशन दिवाएं फ्री में कि थोड़ा बहुत मिले। राशन से क्या होगा, कुछ भी होगा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि जो हम लोग महिला को लेकर जाते हैं, जितना परेशानी हुआ है लॉकडाउन में हमारा भी आशा के, जब हम ये लोग जानते हैं, लेकिन जाने पर भी सोचना चाहिए कि कम से कम सरकार का जब नई एम्बुलेंस मिला तो गाड़ी इधर से लोग लेकर जा रहा है, लोग तो उसको गाड़ी की तो सुविधा, पैसा तो मिलना चाहिए कम से कम, गरीब जी हाँ जी लेकर आई है ऑटो से, तो उसको कम से कम खर्चा भी तो मिलना चाहिए। जी 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 आपने बहुत ही मतलब आपके जो अनुभव हैं उनसे हमें पता चलता है कि संसाधनों और की व्यवस्था करना से लेकर ये जी जो अवेयरनेस की बात सब है। लोग जब सर एक मिनट, सब लोग जब बाहर से आया लोग लॉकडाउन, उससे पहले ही सरकार कुछ कर देते तो अच्छा रहता। सब लोग आए तो उनको रखने की भी सुविधा नहीं था। स्कूल में 20 दिन के लिए हमारा डिप्टी भी मिल गया, उसमें जाकर देख रेख किए, उसमें उन लोग को ओढ़ना बिछावना पंखा बत्ती लगवाएं, उन लोग के खाना टाइम टाइम से वहाँ पर हम लोग दिवाएं। अपना वार्डे में नहीं, या कुछ पंचायत में तक हम लोग अपना पहुँचे हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं। लेकिन 120 घर सर अभी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जनता से बहुत तंग तंग कर कर धर दिया है। बता उसको कोई ना कोई उसका उपाय होना चाहिए कि कम जी से कम जो चीज का नहीं बना हुआ है तो उसका बन जाना चाहिए। जी इसके बाद में घरेलू मामला में है तो जाइए तो हर घर में झगड़ा तकरार, आजकल पेट नहीं भरेगा तो झगड़ा तो होबे करेगा, बाल बच्चे का पेट नहीं भरेगा तो दिक्कत होबे करेगा। सबसे जरूरी तो है, तो सबसे पहले मान कर चलिए तो शिक्षा जा रहा है, ये सो के साल पढ़ाई लिखाई भी चला गया बच्चा लोग के,
जिसके पास में मोबाइल है तो किसी का बाल बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, जिसके पास में नहीं कोई सुविधा है, जिसका सरकारी माने अस्पताल के स्कूल का जिसका पढ़ाई लिखाई है उसका पढ़ाई तो चला गया, सबसे जी, पहले जी, शिक्षा चला गया, इसके जी। बाद में रोजगार छीना गया। जी 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 आपने रोजगार तो पुरुष महिला दोनों के मिलना चाहिए सरकार के तरफ से। जैसे कि अपना देश बहुत पीछा चल गया लॉकडाउन की वजह से, अब बहुत घर में लोग का तनाव बढ़ गया सर। जी 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 ये आपने बहुत आई थिंक अखिला जी ने भी और आपने भी ये काफ़ी मतलब जो आपके ग्राउंड पे परेशानियां उनके बारे में बात की है और अवेयरनेस की। और अब मैं जयंती जी से भी पूछना चाहूँगी जो हमारे साथ हैं उड़ीसा से कि उनके यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज के हैं, जो उन्होंने मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई है जी उड़ीसा सुनिए में। ना, जी एक मिनट हम एक बात और बोल रहे जी हैं। जी जी ये बताइए। बताइए कि कम से कम लॉकडाउन जब हुआ तो जी लॉकडाउन हो जाने से पहले ही सरकार का कम से कम इतना सुविधा दे देना चाहिए कि गर्भवती महिला के कहाँ पर चेक चाक होना चाहिए, बच्चा का टीकाकरण कहाँ पर होना चाहिए। नहीं, आंगनबाड़ी के सर जो बच्चा पढ़ रहा है उसका कुछ खर्च वर्च भेज दीजिए, अपना माँ बाप को परेशान न करे, जी ये सब का सुविधा तो होना चाहिए। जी अभी कुछ नहीं, सरकार सोचे नहीं बुझे के बैग लॉकडाउन लगा करके इतना नहीं दिक्कत हुआ कि हर जी लोग के भी परेशानी हो गया, बहुत ज्यादा परेशानी हो गया। जी 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 मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी बात है। हम 15-20 मिनट में फिर से ये सरकार और आगे के लोगों में क्या सुझाव आपके रहेंगे उस पर और आज विस्तार से बात करेंगे। और आई थिंक हमें टाइम और मिलेगा इस बारे में बात करने का फिर से। और अब मैं थैंक यू मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। जी एक मिनट आप अनम्यूट Can someone please unmute her? I am unable to unmute her. Really sorry. माफ करिएगा, आप म्यूट पे चली गई हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। Anyway, आई थिंक हम आपके पास वापस आएंगे। अभी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, हम फिर से आते हैं आपके पास। माफ करिएगा आशमा जी। जी जयंती जी से मैं पूछना चाहूँगी कि अवेयरनेस की बात की गई है और आपने लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके मेडिकल स्क्रीनिंग और अवेयरनेस की बात की है, आशा के साथ मिलके काम करने की बात की है। तो मैं वहाँ पे आपके अनुभवों के बारे में और हम सभी आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे। जयंती जी प्लीज़ हमें अपने यहाँ के ये कामों के बारे में बताइए और अगर दिक्कतें थी वहाँ पे तो क्या दिक्कतें थी उनके बारे में बताइए। थैंक यू सुगंधा, वेलकम टू ऑल। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना की वजह से मार्च 22, तब मेन प्रॉब्लम था जो लेबर लोग कुछ यहाँ फंसे बाहर की और कुछ बाहर से आए, तो उन लोग को संभालना बहुत मुश्किल था। उसी समय हमने अवेयरनेस किया है लोगों को जाके कि दूरी मेंटेन रखे, मास्क बंटन किए और सैनिटाइजर वगैरह वो भी बंटन किए। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम था वो जो फंसे हुए कुछ लेबर थे उनको निकालना था। झारखंड से 22 लोग हमारे रेलवे स्टेशन पर रुके थे बोइंडा में, तो उन लोग को जो क्वारंटाइन सेंटर में सरकार की तरफ से उनको तो खाना दिया जाता था, लेकिन जो बाहर के श्रमिक बाहर फंसे थे उनके लिए खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। फिर मेरे को कॉल आया, किसी ने कॉल किया जब मैडम ऐसे 22 लोग फंसे हुए हैं, इसको कैसे निकालें। फिर मैंने जो लोकल सरपंच उससे बात की, बीडीओ मैडम से बात की, और एक फ्रेंड्स क्लब बोल के जो संगठन है, स्वेच्छासेवी संगठन, उनसे भी बात की। उनके जो प्रेसिडेंट है उनको रिक्वेस्ट की कि चलो कुछ मदद कर लो। वो खुद गए कुछ लोगों के साथ, उनको चावल दाल खाना खिलाए, 2 दिन खाना खिलाए। फिर बीडीओ मैडम से, यहाँ के कलेक्टर से बात करके उनके लिए झारखंड से जो बस आया फिर उनको भेजा। दूसरे जो हमारे प्रवासी आ रहे थे, हमारे जो जगह है वो एनएच की तरफ साइड में है, जो हमारे पंचायत है एनएच के साइड में है, तो बस से आते थे, हम लोग उनको खाना भी खिलाते थे। एक पंचायत है लोहा मुंडा, वहां से लोग को हम मिला के सबके घर से जो दे सकते थे उनसे कुछ राशन कलेक्ट करके हमने रोज खाना बनाते
और 150-200 पैकेट बना के जितने बस आते थे उनको खिलाते थे, जैसे पानी का और मेडिसिन का, जरूरी मेडिसिन का वो भी देते थे। देन जो कोविड सेंटर में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो कभी कभी छुप के भाग जाते थे। उसके लिए भी जो सरपंच लोग को वो भी परेशानी होता था, उसके लिए भी पुलिस लोग को फिर बुलाना पड़ता है। इसीलिए हमने डॉक्टर जितने भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, पुलिस स्टाफ, उन सबसे मिले और सबसे सलाह मशवरा किए कि आप थोड़ा चेक करो कोई जा नहीं रहा है। और जो क्वारंटाइन सेंटर से आ रहे हैं, सपोज इस गांव का बंदा है, दूसरे गांव शिफ्ट करा दो कि ये नहीं जा पा रहे, घर नहीं जा पाए, छू के घर नहीं जा पा रहे, ऐसे करके सरपंच लोग के साथ सलाह मशवरे करके काम कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम फैल गया तब जब ये जो आए ना लेबर लोग जो आए वो माने नहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए, इसलिए अभी तो ज्यादा हो गया है। उड़ीसा अब बहुत सेंसिटिव स्टेज पर है, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो जितने किए, अभी जो करना है ये अकेले सरपंच नहीं कर सकता, उसमें हम एनजीओ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम उसे एसएचजी ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो आगे आए सबसे मिलके काम करें, मिलके काम करने से होगा। अब इतना फैल गया। हेलो, हेलो, क्या किसी को जयंती जी की आवाज आ रही है? No. आई थिंक हेलो, कनेक्टेड। हेलो जयंती जी, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, मेरे आवाज आ रही है? जी 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 हेलो जी, आप चाहें तो वीडियो बंद कर दें, जी। शायद उसकी वजह से इंटरनेट थोड़ा मुश्किल कर रहा है। हाँ, ये सब मुश्किल हमने देखा, तो ये मुश्किल हम सब, मेरे जो एरिया है उसमें 8 पंचायत इन्वॉल्व है, 8 सरपंच है, उनके साथ मिलके हम अच्छे से काम किया। अब तो किया, लेकिन आगे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी प्रॉब्लम हो रहा है। और पहले क्या था, टेस्टिंग नहीं हो रहा था। टेस्टिंग अभी जितना टेस्टिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट, तब टेस्टिंग नहीं था। अगर तब के टाइम में टेस्टिंग ज्यादा किए होते तो आज ये परेशानी नहीं होता। अभी तो टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी लोग क्या आगे सामने नहीं आते टेस्टिंग के लिए कि कोरोना हो जाए फिर। शायद हाँ जयंती जी, आप अपना वीडियो ऑफ ही रहने दीजिए, मुझे लगता है उसकी वजह से इंटरनेट में दिक्कत आ रही है। आप ऐसे बात कर सकते हैं, हम सुन रहे हैं। ओके 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 ओके, जी जी। हाँ ठीक ठीक। तो ये प्रॉब्लम 3-4 महीने से हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। जी जी, धन्यवाद जयंती जी। तो हमारा अभी हमने बात की है, मैं यहाँ पे राउंड 2, हमारा राउंड 1 खत्म हो गया, राउंड 2 में हम जा रहे हैं। पर उससे पहले मैं बस हमारे सारे श्रोताओं के लिए एक क्विक समरी देना चाहूँगी। आई ट्राई टू डू हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमने इस राउंड में जाना कि हमारे सभी ये जो विमेन लीडर्स हैं वो कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उनके गांव, ग्राम पंचायत और ब्लॉक्स में किस लेवल पे काम हो रहा है और कहाँ तक मुश्किलें आई हैं। हमने थोड़े से सुझाव भी सबके जाने, हम वो सुझाव एक बार फिर से राउंड 3 में डिटेल में जाना चाहेंगे। और अब जो हमारा राउंड 2 है वहाँ पे हम और जानना चाहेंगे कि आप महिलाएं जो हैं, एक लीडर हैं, नेता हैं आप, एज ये विमेन जिला परिषद मेंबर या वार्ड मेंबर या सरपंच, as a young woman, especially for Akhila, I'll also try to quickly summarize in English as well, that we have Yeah, I can understand. Okay, great. So we would like to know, as in your position, as an individual, आपने क्या, I mean, what all have you done and how have you done, and especially in your position, what were the challenges that you feared or had problems with? So my first question to Akhila ji is that you have talked about working on developing guidelines and maintaining social distancing. You spoke about how you
but you also sorry, थोड़ी शोर आ रही है. I'm really sorry about that. I'll repeat my question कि आपने local police के साथ काम किया है. आपने you tried to find out how to make these guidelines work. Could you please elaborate about how you mobilized volunteers and you spoke to the local administration to get these social distancing norms followed? Yeah. Well, definitely, this is not my only a single hard work. This is not only my dedication. Unitely, we fought for it, including ASHA workers, ward members, ANIs, and all the few members from the villages. Everyone unitely worked for this. And yes, of course, it is a big challenge to stop the people who are entering into village, especially with hunger of toddy. We can understand that. Definitely, people will oppose that. Few people, we were able to convince them with our words. They used to understand and they used to go back. But few people, they'll start arguing with us. And especially a very few percentage of people will start arguing with for them. And also, in addition to that, people from my village, I have a problem with few people who have the business of toddy, as this is a loss to further business. So they started fighting with me that I am not encouraging their business. But keeping aside, business was unable to convince few people. For them, we did not find any other any option rather than involving the police. We took police help to warn them. That was a very sad part, because at this moment in a pandemic situation, still we can see the people who are trying to make profits. It is different if they are poor, if they do not have a food or shelter. But as I am aware of them, the people who are rich enough also trying to make a profit in this situation, even overcome that using the police help. Other than that, it went very well. Thank you, Akhila ji. I think what you have said, whatever I can understand from it, is you have, I think, gone to every possible way to make sure that your village is safe, and and I'm glad that you've had a team of volunteers to support, and we all also support you and your work. And in addition to that, I think हाशमा जी, जो अखिला जी ने बोला है, आपका, क्योंकि मेरा नया अगला सवाल आपसे है कि कई जगह पे उन्होंने खुद से बात करने की कोशिश की. कुछ लोगों ने माना उनकी बातें, कुछ लोग एकदम ही नहीं माने, और कई जगह पे उन्हें पुलिस के पास भी जाना पड़ा ताकि ये जो बात है वो समझ आए. जी हाँ सर. जी. तो मेरा आपसे सवाल बस ये, आपको सुनाई आवाज नहीं आ रहा है सर उधर से? जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी, माफ करिएगा. सो मैं बस ये कह रही हूँ कि अखिला जी ने जो अभी हमें बताया कि कई बार उनको लोगों से बात करते समय सीधा जवाब नहीं मिला. कई बार उनको और आगे कुछ लोगों ने तहश में बात की, उनको पुलिस तक भी जाना पड़ा. वैसे ही जब आप अपने मतलब वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं उस बारे में आपसे बात करना चाहूंगी कि आपने लोगों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान फैमिली प्लानिंग को लेकर काम किया. उसकी ज़रूरत जो है अभी उसके बारे में बात किया कि नसबंदी की बात जो है आपने कही कि वो बहुत ज़रूरी है करना. और इस काम को करते समय आपने महिलाओं से बात की या गांव के अन्य लोगों से बात की. तो उसमें क्या दिक्कतों की, मतलब उन्हें ये बात समझाने और उनकी ये बात समझने में क्या दिक्कतें आई? क्या आप हम सभी जी, परिवार नियोजन के बारे में जब घर में, मैंने सब घर में नहीं, किसी घर में लोग का झगड़ा झुगड़ी ऐसे भी माने हुआ. अब रोजगार बाहर से आ ही नहीं रहा है. इसके बाद में
लोग के घर में तनाव बढ़ गया, दो मियाँ बीवी में हो जाता है सर, और तो घर में जो 5 बेकत है तो होबे करेगा। तो ऐसे भी हमारा परेशानी के मालूम चला जो हम लोग के घर में परेशानी है, तो हम लोग जाएं, जा करके उन लोग को समझाए बुझाएं, ठीक है, कि इसको माने अच्छा तरह से जो मिल रहा है जिसके खाइए पिए, इसके बाद में अपना आगे मैं सोचिएगा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब अपना बाहर प्रदेश चलिएगा, रोजगार जब आपको मिलने लगेगा, तब अपना घर में जैसे होगा वैसे कीजिएगा लोग। माफ करिएगा हाशमा जी, आप म्यूट पे चली गई हैं, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही अच्छा हूँ। माने हम लोग घर घर जा करके बोल रहे हैं कि पहले का जमाना था कि लोग के 4-5 बच्चा लोग पैदा करता था, इसके बाद में लोग थी हम लोग जाकर बोलते हैं घर घर घूम कर कि देखो 2 बच्चा हो गया है, नसबंदी करा लो। इसके बाद में नहीं जो बोलता है कि नहीं हम लोग नसबंदी नहीं कराएंगे, अभी किसी किसी का 3 बच्चा है 4 बच्चा है उसको बोलो। हम कहें कि देखो दिन पर दिन जमाना बदलते जा रहा है, सबसे पहले शिक्षा पढ़ाई लिखाई का जरूरी है, लड़का हो या लड़की हो। अच्छा इसके बाद में हम लोग बताएं कि अगर नई नसबंदी कराइएगा, किसी किसी जाकर कराया है, 4-5 आदमी को लेकर नसबंदी करा दिए हैं, 2 ठो किसी का लड़की ये है, 2 को किसके लड़के है, लड़का लड़की में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उन लोग के ले जा करके नसबंदी भी करा दिया, आशा साथ में जाती है नसबंदी के साथ कराने के समय में, हम भी साथ में गए। इसके बाद में बोलते हैं कि इस्तेमाल कीजिए दवा हुआ के, आप जैसे कंट्रोल हुआ, मालाडी हुआ, मैंने दवा हुआ, ऐसे भी सुई वुई के इस्तेमाल, हर तरह तरह के दवा है, ऐसे बात का थोड़े है, जो उस सब का इस्तेमाल कीजिए, अपना 2 बच्चा से ज़्यादा बच्चा मत बढ़ाइए, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगा। जी तो बोलता है किसी किसी समझ लेता है, ऐसा बात नहीं है। तब बताइए कि घर में तो किसी नहीं समाता है तो 2 से 3 कर देता है, तो परेशानी तो उनका ना होगा, लेकिन फिर भी हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, हमारा जहाँ तक समझ है वहाँ तक ले समझा करके उन लोग के हम लोग जानकारी दिए, ले जा करके समझाते हैं। 2 माँ वैसे अगल बगल के 2 बहन लोग होती है उनको भी गुट कर देते हैं कि देखो आप भी थोड़ा इसको असर दिखाइए, समझाइए, हमारे बात पर नहीं मारे तो आशा के लेकर जाते हैं, समझाते बुझाते हैं कि ज़्यादा बाल बच्चा होने देने से बाप मतारी की परेशानी भी बढ़ जाता है, दिन पे दिन समय क्या से क्या हो गया, यही बात है। जी जी जी। और मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी जी कि थोड़ा जब आप आवाज उधर से कम आ रहा है जी सर। जी जी माफ करिएगा। जी नहीं भी नहीं, माफी की क्या जरूरी है जी सर। जी जी आपसे आपके बीच में आवाज थोड़ी हल्की हो गई थी। शायद जी आप तब ये बता रही थी कि जब हम लोगों से आप बात करते हैं तो उनके जवाब जो हैं वो कभी कभी वो मान लेते हैं और कभी कभी नहीं मानते हैं। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या मतलब किस तरीके के जवाब आते हैं, क्या आप उन्हें कैसे समझाती हैं जब वो नहीं मानते जी हैं तो? उनके समझाते हैं, अब जैसे कि हम लोग समझाते हैं कि देखो आप बताइए कि हम लोग 200 रोज के कमा रहे हैं तो 200 के कमीनी से क्या होगा, 2 बच्चा है, 2 बच्चा रहेगा तो उसमें अपना खाना खुराक खिलाइएगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा, तो लोग समझ पाता है, सब लोग तो नहीं ना समझ पाएगा, किसी समझता है किसी नहीं समझता है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, 2-4 माँ बहनी होकर उसको बैठकर समझाते हैं, दूसरा क्या, ऐसे ही भी उसको समझदारी दिलाते हैं, कहते हैं मैंने जैसे अपना बाल बच्चा के कोई चीज में आदमी मनाता है कि हाँ बाबू मान जाओ, चॉकलेट देते हैं, बिस्कुट देते हैं, उसी तरह उन लोग के भी प्यार देते हैं, जुबान से भी प्यार देते हैं कि तुम मान जाओ, चलो बोलो ठीक है हॉस्पिटल के पास हम लोग चलेंगे साथ में, नसबंदी करा लो, ज्यादा बाले बच्चा कर पैदा देने से तरह तरह के आपको भी परेशानी होगा, बाल बच्चा के भी विकास में कमी आ जाएगा, पढ़ाई जी लिखाई भी अच्छा से नहीं होगा। जी 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 धन्यवाद। ये ऐसे जी हम लोग जब चैंपियन परियोजना से जुड़े तब कुछ दिन तो हमारा कुछ भी उतना जानकारी नहीं था, लेकिन जब जानने समझ गए बहुत कुछ की जानकारी हुआ, ऐसे भी कैसे करना होगा, वही गोद भराई का रस्म कैसे करना होगा, आंगनबाड़ी सेंटर पर कब जाकर चेकअप उकअप कराना होगा, मुंह मिठाई के रस्म कैसे करना होगा, सब जाकर करते रहते हैं, देखते सुनते रहते हैं, जितना जो कोई वही मजबूर है, जितना अपना से हेल्प होता है उतना अपना से हम लोग कुछ हेल्प कर देते हैं। जी 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 ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस लेवल तक, इस स्तर तक जाके बात कर रहे हैं और आपने स्पेशली ये
फैमिली प्लानिंग की बात की है और नसबंदी की, और लोग मान भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग मतलब भले ही जिल्लतें उठानी पड़ी हैं, कुछ दिक्कतें आई हैं। आप सॉरी, आप जो बात कर रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, माफ करिएगा। आप अगर अनम्यूट कर पाए अपने आप को। सुनाई जी जी जी, अब आ रही है आवाज। जी। मैंने यही लंग पहले के जमाने की बात बता रहे हैं, कुछ दिन पहले की बात है कि एक आदमी के 7 बच्चे हैं। जो नहीं अच्छा। मानेगा तो बच्चा नहीं कि चॉकलेट बिस्कुट देकर मना दीजिए। जो नहीं मान रहा है तो उनके क्या करते हैं कि बोलते हैं कि देखो चाची का 7 बच्चे हैं, बताइए कि उनको कितना परेशानी है। रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा नहीं था। किसी 200 का 100 रुपया का रोजगार करता है, किसी रोपनी करता है, सोनी करता है, तो करने से कुछ भी होगा? अगर माए बच्चा का विकास होगा? नहीं होगा। 2 गो बच्चा रहेगा तो अच्छा ढंग से पढ़ाइएगा लिखाइएगा, उसको खाना टाइम टेबल से खिलाइएगा, स्कूल पहुंचाइएगा, जितना में होगा उतना में अपना अच्छा ढंग से उसको परवरिश कीजिएगा। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, और शायद आपके ये समझाने की वजह से उन्हें समझ आया भी है। शायद अपने आप से ये नहीं समझ आता, और ये जो अभी कोरोना के दौरान जो जो मुश्किल है वो समझाने के लिए आपने आगे बढ़कर लोगों के साथ मैं तो कहूँगी अपनी जान की परवाह ना किए बिना, क्योंकि इस समय बाहर निकलना, लोगों से बात करना ही बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। माफ़ करिएगा, आपकी आवाज़ म्यूट हो जा रही है बार-बार और मुझे सुनाई नहीं दे पा रहा है। मैं आपके पास फिर से आती हूँ एक बार, एक हमारा थर्ड राउंड भी है जिसमें आती हूँ मैं। और मैं यहाँ पे जयंती जी से और जानना चाहूँगी कि ओडिशा में जो आपने अपने आसपास आपने बात की कि यहाँ पे सरपंच जो हैं उनको पावर्स मिली हैं, लेकिन एक बाकी जो आशा हैं या वार्ड मेंबर्स हैं या बाकी लोग हैं, उनके भी मतलब वो जो पावर्स हैं जो शायद हमारे स्टेट में पहली हैं, किसी और के पास वो पावर्स किसी भी दूसरे स्टेट में नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में बताएं, और आप उसके आगे भी उस बारे में कि ये जो चीज है अगर दूसरे स्टेट्स आगे चलाना चाहें तो किस तरीके से अच्छा रहा है या क्या दिक्कतें रही हैं, आप हमें बताएं। जी सॉरी जयंती जी, आप अनम्यूट। I'll really request the tech support team to help in unmuting her, please. जयंती जी, शायद आपके पास एक म्यूट का एक बटन होगा, उसको अगर आप क्लिक कर देंगी तो अनम्यूट हो जाएंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो। एक माइक्रोफोन का आइकन दिखेगा आपको, माइक बना हुआ है। I can only see ask to unmute. I am unable to unmute directly. Is anybody able to unmute her in the organizing team? I can only ask her to unmute. 1 minute, Sugandha, just checking. Okay, okay. For other speakers, I know on the screen you can see Samreen ji's picture. Unfortunately, we were unable to have her for this discussion. She is also the youngest Sarpanch in Jammu and Kashmir. And हो गया? जी. So yeah, thank you. That's why we have her PPT, हो and गया? for internet we couldn't. जी जयंती जी, जयंती जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अब सुनाई दिया? जी जी जी। ठीक है, हमारी ओडिशा गवर्नमेंट ने सरपंच लोग को कलेक्टर का पावर दे दिया है कि अपनी पंचायत में जो कोरोना के टाइम जो डिसीजन लेना है तुम खुद ले सकते हो, क्योंकि जो पंचायत का जो हेड होते हैं बीडीओ, कलेक्टर, बीडीओ, तहसीलदार, ये होते हैं, जीपीओ होते हैं, तो इनसे बिना सलाह मशवरा करके भी अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ,
कुछ सरपंच जैसे मोनोपोली आ गया, सपोज जिसको जैसे पावर दिया जाता ना, वो अपनी मनमानी करता है। पावर देने से पहले मतलब मेरे जो फील हुआ, जितना मैंने देखा, मेरे पंचायत में जो 8 सरपंच है, जितना देखा और बाहर भी जितना न्यूज में मैंने सुना, ये लोग क्या है, अपने खुद के डिसीजन से लेते हैं, काम करते हैं, कोई दूसरा का सुनते नहीं है। तो कभी कभार ना लोगों को ये दिक्कत होता है। इसलिए जब पहले तो मेरे सजेशन है कि जैसे आशा और आंगनबाड़ी और एसएचजी ग्रुप, ये महिला को अगर ज्यादा अहमियत दिया जाता तो काम अच्छे से होता। क्योंकि एक वोमेन का जितना सुनेंगे जो सोसाइटी, एक सरपंच का या जेंट्स का नहीं सुनते। हमारे सोसाइटी में क्या हुए, एक लेडीज अच्छे से समझा सकती है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और आशा जो आंगनबाड़ी का मेरे एरिया में अच्छे काम करते थे, और दुर्भाग्यवश एक आंगनबाड़ी आशा कर्मी की डेथ भी हो गई कोरोना से मेरे एरिया में। तो ये लोग घर घर घूम के जो काम करते थे, उनको प्रोत्साहन चाहिए था। जैसे सरपंच को कलेक्टर पावर दे दिया गया, उन लोगों को भी प्रोत्साहन चाहिए था। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर लोग के ऊपर इंश्योरेंस है 50 लाख का, पुलिस के ऊपर है, ऐसे आशा और आंगनबाड़ी के ऊपर भी इंश्योरेंस होना चाहिए था। क्योंकि उनके डेथ के बाद हमें लड़ना पड़ा, जो आंगनबाड़ी जो आशा कर्मी की डेथ हो गई उसके वजह से हम लड़ना पड़ा, वीडियो के पास जाना पड़ा कि इसको, अगर पहले उनके ऊपर इंश्योरेंस होता तो उनके फैमिली कोई किसी को लड़ना नहीं। ये टाइम में किसी के साथ लड़ना, किसी के लिए फाइट करना, ये भी मुश्किल है। अब से घर से निकलना, ये सब अवेयरनेस कराना, फिर किसी का डेथ हो गया उसके लिए काम करना, ये भी मुश्किल है। तो सरकार को ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। जो लेडीज लोग, जो वुमन पावर है, मिशन शक्ति जो बोलते हैं हमारे उड़ीसा में, मिशन शक्ति ज्यादा काम करता है। ये मिशन शक्ति को अगर काम दे देते सरपंच के साथ, और गांव की जो मुखिया है उनको दे देते, फिर काम आसान हो जाता। कभी कभार जो क्वारंटाइन सेंटर में जो जितने लोग हैं, वो सरपंच के साथ नखरे करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। अगर सब मिलके होते हैं तो ये नहीं कर पाते। सरपंच के बात जो नहीं सुनते थे, कभी कभार भाग जाते थे कि ये खाना नहीं खाएंगे। आपने टीवी में देखा होगा, नहीं होगा, कुछ ने तो खाना को फेंक दिया। कुछ लोगों ने खाना फेंक दिया कि आपको ये खिलाते हैं, हमें मटन नहीं दिया, हमें चिकन नहीं दिया। अगर ये सब एसएचजी ग्रुप को दिया जाता, ठीक तुम खाना बना के दो, तो ये आसान होता। एसएचजी ग्रुप, आंगनबाड़ी आशा कर्मी जितने ढंग से काम कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दिया होता तो और अच्छे से काम हो पाता। मेरे समझ में जो है, मैंने जो देखी, मैंने जो मेरे यहाँ की काम है। बाकी हमारे सरपंच लोग इतने अच्छे से भी काम किया है। डॉक्टर भी जो है, छोटा सा डॉक्टर हॉस्पिटल है, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूरी पे जो मेन हॉस्पिटल, वहाँ भेजना पड़ता है। कोविड हॉस्पिटल 60 किलोमीटर दूरी पर है, कोविड हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में भेजते हैं। तो सैनिटाइज भी होता है हॉस्पिटल, लेकिन जो जगह का जहीं से निकला, अगर तुरंत सैनिटाइज कर किया होता तो ये कुछ कमी रह गई हमारे एरिया में। तो ये कमी तो रह गई इसलिए कि हम एक साथ नहीं थे। ये कोरोना हमको सिखाया कि कोई अकेला बंदा चाहे जितना भी पावर उसको दे दो, कलेक्टर का पावर दे दो, कुछ की भी पावर दे दो, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें यूनिटी का जरूरत होता है। तो ये यूनिटी में कहीं हमें कमी आई। तो इसलिए अब उड़ीसा जो है स्टेज 3 में आ गया है, स्टेज 4 को भी बाकी है। और ज्यादा जो है गंजाम, भुवनेश्वर, अनुगुल में भी बहुत जगह, कटक बहुत जगह, इवन डॉक्टर लोग को बहुत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जैसे टोटल सिस्टम थोड़ा पीछे रह गया। जी जी जी, धन्यवाद। मुझे लगता है ये हमारे राउंड 3 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव आपने दिया, और हम आगे भी कुछ दिन बाद 30th को हम जो स्टेट के लोग हैं उनसे बात करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि ये सुझाव हम जरूर उन तक भी और एक बात, और जितने भी एनजीओ है लोकलिटी में, उनको भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग अच्छे से काम करते हैं। हमारे यहाँ एक विश्व युवा केंद्र है जो मनोज महापात्र है, वो बंदा भी मास्क बंटन किया है, जो माइक लेके गांव गांव घूम के अवेयरनेस भी किया है। उनको भी साथ लेना चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ अकेले नहीं, इस टाइम में सबको साथ लेके चलना चाहिए।
लेकिन वो लोग फिर भी अपने अपने काम किए हैं। हमारे यहाँ जो एनजीओ है भी, वो लोग भी काम किए, जो क्लब लोग वो भी आगे आए। कहीं कहीं तो अपने जैसे लेबर लोग को खाना खिलाए, फिर जो सूखा खाद्य, किसी को चावल दाल ये सब सामग्री भी दिए, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, वो भी सब दिए हैं। जी जी जी। और क्योंकि हम काफी मतलब इस राउंड में हम ये भी जानना चाह रहे थे कि आप एक महिला वार्ड काउंसलर, आपने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, आप भी बहुत, आप सभी इनफैक्ट बहुत ही साहसी हैं जो आगे जाके काम कर रही हैं, और हम आपके भी जो आपके निजी अनुभव हैं इन काम करने में, दिक्कतें हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो अगर आप उस निजी बारे में। अनुभव में दिक्कत यही था कि मैं बीजेपी से हूँ, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बीजेडी का है, तो इसलिए जो लेबर लोग थे उसको हटाना, यहाँ से शिफ्ट कराना, उसके लिए मुझे कल वीडियो से बात करके 2 मिनट में, मैडम आधा घंटा में हम बात करते हैं, फिर दोबारा कल लगाती हूँ, नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, कोई बात को ध्यान नहीं दे, फिर कल सब कलेक्टर इससे गुजरना पड़ता है हमें। एक एक काम एक साथ नहीं हो पाता, मतलब एक कॉल से नहीं हो पाता, दोबारा कल लगाना पड़ता। मैडम ये क्वारंटाइन सेंटर में ये प्रॉब्लम है, ये खाना नहीं दिया जा रहा है, कंप्लेन आ रहा है हमको कि 4 बजे, कई क्वारंटाइन सेंटर में तो चूड़ा वगैरह, मतलब जो टिफिन होता है वही खिला के दिन भर रख देते हैं। जैसे हम कॉल करते हैं वीडियो लोग को, वो बोलते हैं ठीक है आधा घंटे हमें देखेंगे, ऐसे करेंगे। दिक्कत तो बहुत आई, फिर घर में बेचैनी था कि ये लोग खाना नहीं खाए, फिर हम कर सकते भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरपंच के हाथ में था और वीडियो जो है उनको उनके हाथ में था। अपोजिशन के रहने की वजह से हमें थोड़ा मुश्किल आई। जी जी जी। तो मैं इस राउंड को भी एक चाहूंगी कि मैं समराइज कर पाऊँ दिक्कतों की, और आपके अकेले अवेयरनेस की बात हुई है। आई थिंक व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि जो हमारी पहली बात तो ये है कि आप सभी ने, और मुझे आशा है कि हमारे सारे जो महिला लीडर्स हैं पंचायत लेवल पे, लोकल लेवल पे जो हैं, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के खुद निजी तौर पे जाके लोगों से बात की है, और लोगों को समझाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को सपोर्ट मिला है सरकार का, लोगों का, कुछ लोगों को नहीं मिला है, और उन्होंने लड़के अपने इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ा है, और फिर भी आप लोगों ने इतना काम किया है, और शायद उसकी वजह से काफ़ी कुछ बेहतर भी हुआ है और काफ़ी कुछ बचा भी है। और शायद एक और चीज जो मुझे हाशमा जी से भी समझ आई है कि एक औरत होने के नाते जो आप कुछ बातें हैं जो समझा पाती हैं, स्पेशली फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसी। जयंती जी, आपने भी मेडिकल सर्विसेज और स्क्रीनिंग की बात कही है पहले भी, और आपने काम भी किया है उस पर। अकेला, एज अ यंग सरपंच, यू हैव ऑल्सो ट्राइड टू mobilize youth and try to actively, boldly talk. I think those are commendable things, and as a woman taking those steps forward, as a woman politician taking those steps forward is a huge thing, and we all applaud you. और हम इस काम की I mean, आपको शुक्रिया भी करना चाहते हैं इसके लिए, इस काम के लिए। आपकी जो दिक्कतें हैं उनको आगे पहुंचाना भी हम कोशिश करेंगे कि पहुंचा पाए आगे। और अब मैं मूव राउंड 3 में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पे आप सभी ने कुछ कुछ बातें की हैं कि सरकार को कैसे बदलना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। पर एक अगर हम ठोस सुझाव की बात करें, जो ऐसी चीज हो जो हम ये आपकी एक बात को ले जाके पहुंचा सकें, सरकार के लोग हैं उनसे कह सकें कि आप ये बदल दीजिए या ये नई चीज ले आइए, तो हम शायद कुछ बेहतर तरीके से इस परेशानी को और आगे आने वाली ऐसी परेशानियों को हैंडल कर पाएंगे। तो मैं I'll go first with Akhila ji. I think you have spoken about and you have faced the challenge of maintaining social distance. Do you think ki, what could have been done better in terms of maybe the government could have done something better where you would not have to take that steps that you had to stand to make people follow this?
It is a sudden pandemic. Both state and central government have, I guess, we have seen that they tried their best to handle the situation. As per lockdown wise, as per medical wise, they tried their best. But being a citizen, a responsible citizen, even it is our responsibility to follow the rules. Especially the sad part of this whole process is, what I feel is, students and the educated students, employees who all are aware of this pandemic situation, even they are roaming on the road without following any rules. It's their responsibility to tell others, to tell uneducated people. But if they themselves roam on the road, what is the use of the education? So I felt very sad about this, because see, in these months, if we see, police, the frontline warriors, they worked very hard day and night. So why we always want someone to monitor us, when we are aware of that, when we need to take care of ourselves and our family members? Why we always want someone to monitor us? So why police need to monitor us? It's your responsibility. So especially for this, people need to change. People need to feel more responsible. And as per government wise, yes, it handled in a better way. But I feel only the more sufferers in this situation is uh, migrant laborers. They suffered a lot. It would have been better if there is a prior information about laborers and a safety drop in their state, and who were struck the facilities, the food and shelter. The a little failure in that. I wish they can focus more on them. So next time, I wish the situation should not repeat. But if in case, it would have been better more if we focus more on the migrant laborers too. Right, right. Thank you, Akila ji. I think what you have mentioned rightly is that so we of course, so on one side we want the citizens to follow the rules, to understand how important it is to stay indoors or maintain the distance. But on the other side, the government also to understand things like migrant labor, the crisis, ensuring that there are right ways so that the people are not desperate, don't go in panic that they have to do things like those. They have to travel and they have to Exactly. expose themselves to the virus. And also that probably they would have communicated clearly, or maybe they have to think how citizens would follow the rules better. And it's a both way, I think, that has to be done, both the parties have to think better. Exactly. So thank you very much for that. I would go to Hashma ji. I think migrant labor ki baat ki hai. Hashma ji, if you have any suggestions, especially in terms of jobs, you also said men and women should get जी उनको आवाज job मिलनी चाहिए. आवाज नहीं जी आ रहा जी है सर? जी 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 आपने हाशमा जी अखिला जी ने हमें बताया कि गवर्नमेंट्स को माइग्रेंट लेबर्स पे भी फोकस करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, और हम सब एज सिटीजन्स हमको भी सोचना चाहिए अपनी तरफ से और पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का. तो आपने ये जो माइग्रेंट लेबर की बात कही है, आपके यहाँ बहुत सारे रिटर्निंग जी ऐसे जी हैं जो गांव आए हैं. आप अगर गवर्नमेंट की सुझाव, अगर हम अपनी सुझाव की तरफ, आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहें, तो आपने एक जॉब की भी बात कही थी. क्या आप किसी भी उन चीज पे टिप्पणी करना चाहेंगी? जी हम लोग भी आए लोग बाहर से, तो परेशानी तो होबे किया सर. उन लोग के लिस्ट बनवाए, उन लोग के ले जा करके स्कूल में अपना दरी बिछावना, हर चीज की व्यवस्था किए. क्वारंटाइन में उन लोग को रखवाए. इसके बाद में उनका चेकअप भी कराए डॉक्टर बुलाकर उन लोग के. जी उस जी 20 जी दिन के हमारा भी मीटिंग दे दिया, उसमें जाए. जी जी. और सरकार, माफ करिएगा, आप शायद गलती से एक म्यूट बटन दब गया है. वो आपका जो ये स्पीकर है, इसको अगर आप सरकार से क्लिक कर दें. जो मनरेगा के जो ठीक. मिल रहा था, जो राशि मिल रहा था, उसमें जी जिन लोग के सबका बाकी फंस गया है, पैसा नहीं मिला है, उसका कैसे होगा सर? जी जी. जी
शायद ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है सरकार को ये बात सोचने की और समझने की कि इस टाइम पर अगर ये जो मनरेगा का पैसा है या इवन जॉब्स, आपने अपने रोजगार की भी बात की है पहले, कि अगर वो ही नहीं मिल रही हैं या पैसा नहीं मिल रहा है तो लोग जी, हमारा कहने का यही मतलब है कि सब लोग तो एक एक काम तो नहीं ना करते हैं, सब लोग आरिये मिट्टी तो नहीं ना कोड़ते हैं, किसी बाहर में कपड़ा सीते हैं, कोई ऐसा फुल कढ़ाई के काम करते हैं। तो जिसका जो जो कर किया उसको तो मिला, और जो नहीं किया उसको तो नहीं को ना कोई ऐसा सुविधाएं मिला, कोई ऐसा था तो उनको तो पैसा नहीं मिला, उसको तो रोजगार कोई नहीं मिला, उसको घर में जागृत तनाव नहीं होगा, जरूर होगा। जी उसके लिए सर कैसे करना होगा। इसके बाद में पंचायत का काम है। देखिए हम लोग थोड़ा चढ़ बढ़ के काम किए, सब लोग हमारे जैसे तो नहीं ना काम किए हैं। पंचायत के काम मजबूत होना चाहिए। कम से कम जब लॉकडाउन लगने वाला था तो कम से कम सरकार का 2 महीना पहले नोटिस दे देना चाहिए कि हर लोग अपना सुविधाएं सोच ले, सरकार भी अपना सुविधाएं सोच कर लॉकडाउन लगाते तो इतना तो परेशानी हमारा भी नहीं बढ़ता, किसी लोग के तो नहीं ना बढ़ता। जैसे 10 को हम लोग डिलीवरी लेकर गए, कितना कितना परेशानी हुआ, हम लोग डंडा भी खाए। इसके बाद में एगो बच्चा भी मर गया, पेट में बच्चा मुंह पर आ गया था, वो जाने नहीं दिया, टाइम लग गया, बच्चा पानी पीकर बच्चा मर गया। 5.5 किलो 200 ग्राम का लड़का था। जी बहुत ही दुखद बात है ये। जी, दुख के बात है। जी तो कितना परिश्रम से लोग बच्चा पोसता है, तो कम से कम उस स्वास्थ्य सरकार के चालू रखना चाहिए। जी जी बाकी जैसे आंगनबाड़ी है वो रखना चाहिए कि गरीब के बच्चा चाहिए, जो इसका बच्चा हो पढ़ता है तो उसको पढ़ना चाहिए, उसको टीकाकरण होना चाहिए समय पर। गर्भवती महिला के थोड़ा वजन वजन माने बच्चा का चेकअप होना चाहिए। वो सब सुविधा का तो सरकार के नहीं ना रोकना चाहिए। इसके बाद में जिसका बचत राशन कार्ड नहीं है, कोई के है कोई के नहीं है, जिसका अप्लाई हो रहा है तो अच्छा ढंग से उसको मिलना ना चाहिए। ये बताइए कि 5 आदमी के मिल जाएगा, अब 50 आदमी के नहीं मिलेगा तो चैन में रहने देगा सर? हम लोग के, हम लोग जी जब 500 जनता के मालिक है तो हम लोग के चैन में वो रहने देगा? नहीं रहने देगा। हम्म। तो यही बात है। तो ऐसा बात है, देखिए कि हम लोग सब जैसे हमारे जैसे सब वार्ड नहीं है जहाँ अपना से हेल्प, जान से भी हेल्प करे, कुछ अपना से जो जिसमें है उतना में हेल्प करे, चाहे गांव घर घूम के अपना समझाए बुझाए। सब लोग एक जैसे नहीं, किसी किसी अपना कामे में उलझ कर रह जाती है। लेकिन हम लोग ऐसा है कि बहुत अपना पंचायत में पहले से भी विकास कराए हैं। ऐसे तब कोरोना बंदी में तो विकास था, छोड़िए ना, सब लोग का ना बंदी हुआ है। लेकिन रह गया बात की मनरेगा में सब लोग तो कोदारिये नहीं ना चलाता है। अब इसमें कम से कम महिला का पुरुष का कोई रोजगार मिलना चाहिए। बच्चा जो नहीं पढ़ लिख रहा है, अभी पढ़ाई बंद है, उसको शिक्षा अब मिलना चाहिए, जरूरी है। जो बच्चा तो पढ़ लिख जाएगा उसको तो पढ़ जाएगा तो फेल हो जाएगा। कहाँ से पढ़े, पढ़ पाइए नहीं है, माने पढ़ना ही नहीं है तो कहाँ से क्या करेगा, कहाँ से परीक्षा देगा? अपना दिमाग से देगा परीक्षा। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल हैं जो आपने उठाए हैं, और हमारी एक टीम भी है जो आपके ये सारे सवाल जो हैं उनको नोट डाउन कर रही है। हमारी इस सीरीज के थ्रू भी यही कोशिश है कि हम आपकी ये सारी बातें कल को जो सरकार के लोग हैं या सिविल सोसाइटी एनजीओ के लोग हैं, उन सब तक ये बातें पहुंचा पाएं और उन्हें ये समझा पाएं कि ये कुछ ग्राउंड लेवल पे ये कुछ कठिनाइयां हैं जो शायद जब हम लॉकडाउन जैसी पॉलिसी बना देते हैं कि आज से सब कुछ बंद है, वो शायद हम भूल जाते हैं इन सारी चीजों की। एंड अखिला जी हैज आल्सो स्पोकन अबाउट हाउ if you don't everything everyone has tried to manage कि ठीक से हम लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर लेंगे, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट हुआ है। अगर ठोस पॉलिसीज होती हैं, अगर माइग्रेंट्स के बारे में सोचा जाता, प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में सोचा जाता, हेल्थ सर्विसेज के बारे में सोचा जाता, और बेटर प्लानिंग की जाती। आपने आपने पहले ये भी बात की है कि योजना बना के एक योजना बनाना बहुत जरूरी था। शायद वो एक चीज है जो हम भूल गए एज अ नेशन, एज गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है लॉकडाउन का। तो वो योजना बनाना, समझना, हर जो हमारे जिंदगी के चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, उनके जो हर
अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं, अलग परेशानियां जो हैं सबकी, क्योंकि सबकी परेशानियां एक जैसी नहीं होती, सबके आपने कहा रोजगार भी एक जैसा नहीं होता, वो सारी जो अलग तरीके की दिक्कतें हैं उन्हें लेकर अगर हम लॉकडाउन पॉलिसी बनाते तो शायद बेहतर होता। और आपने जो ये आप दोनों लोग ने अभी ये जो डिटेल में ये परेशानियां बताई हैं, शायद इन सब को लेकर हम आगे कुछ बेहतर पॉलिसी बना सकें। और मैं अब मूव करूंगी जयंती जी पे भी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी हमसे पुराने पिछले सेशन में कि एक जो लोकल लेवल पे पावर की बात होती है, जैसे हमारे स्टेट्स में तो ऐसा पावर बहुत है कि एक उसके ऊपर एक बॉस, उसके ऊपर एक बॉस, एक हायरार्की टाइप है। लेकिन अगर लोकल लेवल पे सिर्फ एक सरपंच को पावर देने की बजाय अगर हम ऐसे आशा वर्कर्स, ANM वर्कर्स सबको साथ लेके या वो जो पावर है उसको हम बांट सके इन सब में, तो शायद बेहतर तरीके से काम हो सकता है और उनके काम की सराहना भी बेहतर होगी। और ये जो वो सारी महिलाएं जो हैं लोकल लेवल पे काम कर रही हैं, उनके काम को सराहने का एक तरीका हो सकता है ये भी। ये इस बारे में अगर आप अगर कोई सरकार को या सिविल सोसाइटी को या ऐसे जो अन्य लोग जो इस पैंडेमिक में, कोरोना में हमारी मदद करना चाह रहे हैं, कुछ बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर कोई एक या दो ठोस सबूत, मुझे माफ करिएगा मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है एक्चुअली, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कम हो चुकी है। मैं फिलहाल विजयवाड़ा में हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हिंदी की बहुत कम है। लेकिन मतलब अगर कोई ठोस सुझाव हो सरकार के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में वो पावर है कि वो डिसीजन ले सके, तो उनके लिए वो क्या होंगे? हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। अरे तो मेरे पहले जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज महिला को सशक्तिकरण अगर उड़ीसा सरकार प्रायोरिटी दे रहे हो, सिर्फ उड़ीसा नहीं भारत की सरकार महिला के ऊपर जो प्रायोरिटी अगर दे रही है, फिर महिला की रोजगार के बारे में भी प्रायोरिटी देना चाहिए। जो SHG ग्रुप है उनके लिए ये कोरोना काल में काम होना जरूरी है, क्योंकि जैसे जो जिसके लेबर लोग बाहर से आए हैं उनके लिए काम नहीं है, वो बाहर से जाएंगे फिर उनके लिए सुविधा भी नहीं है। तो पहले क्या होता है, जो ये हमारे जो स्टेट है उड़ीसा, ये फुली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर जैसे महिला लोग को एनकरेज करके उनको छोटा छोटा लोन देके तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हम करा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, इंसेंस स्टिक और फिनाइल वगैरह वो भी करा सकते हैं। जैसे घर का जो सामान है, छोटे छोटे सामान है, वो भी महिला सशक्तिकरण करके महिला SHG ग्रुप माध्यम से करके हम इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। तो पहला ये कि महिला को सशक्तिकरण अगर करना है तो महिला की इनकम के बारे में पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सारे पढ़े लिखे नहीं होते कि नौकरी में जाए कि काम करे, पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर घर में कौन से काम करे, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी पहले हमारे लोग करते थे उसमें भी प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो अभी कैपिटल की जरूरी है, पैसा नहीं है लोगों के पास, अगर मशीन चाहिए, सिलाई की मशीन चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो जो कैपिटल कहाँ से आएगा उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर महिला काम कर सकते हैं तो जो फैमिली का जो इकोनॉमिक स्टेटस वो बढ़ सकता है, फिनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। दूसरे जो कोरोना की हम अगर कैसे कोरोना को फेस करें, तो कोरोना को लेकर लोगों के मन में जो एक भूल है कि ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, मर जाएंगे, उसके लिए जो टीबी में हमारे आयुर्वेद में जो प्रायोरिटी दे रहे, जो हमारे जोगी मुनि ऋषि आयुर्वेद में प्रायोरिटी दे रहे, SHG ग्रुप के माध्यम से, आशा माध्यम से, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से जो आयुर्वेदिक की अगर हम प्रचार कर सके, जैसे गिलोय, तुलसी, अदरक, ये काढ़ा बना के पिए, बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाए और गर्म पानी पिए, हाथ पैर साफ रखे, ये सारे काम अगर उनको पहुंचा जाए, उन लोग को पहुंचा जाए घर घर, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा ना टीवी देखते हैं, कुछ एरिया में तो इंटरनेट का सुविधा भी नहीं है, मोबाइल का सुविधा भी नहीं है, तो इन लोग को अगर समझा जाए, बोला जाए कि ये करने से ये बीमारी इतना भयंकर नहीं है, ये लड़ सकते हैं हम, ये बीमारी के हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं और बच भी सकते हैं,
तो ये अच्छा ही होगा। आयुर्वेद की भी हमें थोड़ा मतलब गांव गांव में जो आयुर्वेद की अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो ये भी अच्छा ही होगा। और दूसरा थिंग है एक्सरसाइज। जैसे वो खातूमा बहन बोले कि प्रेग्नेंट लेडी को कैसे रहना है, प्रेग्नेंट लेडी के बारे में ये आशा आंगनबाड़ी हमारे यहाँ तो देते हैं, जो प्रोटीन फूड देते हैं, लेकिन प्रोटीन फूड के साथ साथ कौन सी एक्सरसाइज कितना काम करने से उनकी तबीयत सही रहेगा उसको भी समझाना पड़ेगा। जी, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है। एक हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि सरकार को कम्युनिकेशन पे फोकस करना है कि सही जानकारी जो है वो पहुंचे। तो एक तो है क्लियर कम्युनिकेशन, बट ये जो पहुंचने वाली बात है ये शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। जैसे एक हमारी जो पैनलिस्ट हैं जो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ज्वाइन कर पाई, वो जम्मू कश्मीर में है और वहाँ इंटरनेट बहुत दिनों से बंद है, वहाँ सिर्फ 2G चलता है। तो वैसी जगहों पे सरकार को इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही इतना मुश्किल हो जाए, या कई जगह सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ बिजली नहीं आती है, जहाँ शायद टीवी, फोन, इंटरनेट ये सब चीजें हमारे नहीं। ओडिशा में भी ऐसी जगह है। जी, तो वहां पे ये एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जो एक्सेस की बात करते हैं कि पहुंचने तक सरकार शायद बहुत अच्छी गाइडलाइंस बना दे, पर वो पहुंच ही नहीं रही लोगों तक, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। उसके लिए हमें एनजीओ की जो आगे आते हैं काम करने के लिए, ऐसे बहुत एनजीओ है जो प्रचार प्रसार करते हैं, और जो एसएचजी ग्रुप को अगर कुछ हम फंड, ऐसे बिना सोचो एक महिला काम कैसे करेगी एसएचजी ग्रुप में, वो काम कैसे करेगी उसको पर अगर वो काम करेगी कहीं अड़ोस पड़ोस में घूम के बताएगी कि ये करने से ये अवेयरनेस करेगी, फिर एक दिन का तो उसका रोजगार चाहिए ना, तो उसको फंड चाहिए, फाइनेंशियली अगर सपोर्ट होगा तो काम करेगी। उसके लिए सरकार को प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। अगर कहीं पे आप नेट में नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हमें हमारा जैसे हकर्स, हमारे जो हम जब ब्लॉक में मीटिंग करते हैं ना, हकर्स जैसे जो इंश्योरेंस कराना है गाय बैलों के ऊपर, अगर उन लोग नहीं मानते फिर हकर्स भेजते, जो सरकार अपॉइंटमेंट देते हैं 3000 4000 के हकर्स अपॉइंटमेंट करते हैं, वो लोग घर घर घूम के बात करते हैं। ऐसे ऐसे करना चाहिए, हकर्स को अपॉइंटमेंट करो, जो महिला आगे आएंगे उनको अगर कुछ फंड के हो तो प्रोत्साहन राशि मिले, वो काम करेंगे। हर जगह तो इंटरनेट का सुविधा नहीं है ना, इसलिए लोग को जाना पड़ेगा वहाँ। जी। धन्यवाद। आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आगे लाई है, और आप सभी के जो सुझाव हैं हम कोशिश करेंगे कि ये आगे भी पहुंच सके, रिपोर्ट के थ्रू भी और डायरेक्ट बातचीत के थ्रू भी। और हमारे पास कुछ 15 मिनट, कुछ 15 से कम ही मिनट हैं, तो मैं हमारी ये जो जनता है वो आप सभी को सुन रही है, आप सभी को दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क, एंड उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं इन द चैट बॉक्स। तो मैं कुछ शायद बहुत सारे सवाल नहीं ले पाऊँ, पर कुछ डायरेक्ट सवाल हैं, तीन चार सवाल जो मैं लेना चाहूँगी, और ये हमारा लास्ट राउंड है, इसके बाद हम खत्म कर सकते हैं 6 बजे। आप सभी काफी देर से बात भी कर रहे हैं, मुझे पता है हाशमा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर वो हमारे साथ आज जुड़ी हैं अपने अनुभव बताने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, जो जनता की तरफ से आया है, वो ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस apart from police taking help from police, what is the what were the other government bodies that you took help from, or they helped you to make your village corona free? That's one question directed to you, Akhila ji. Yeah, it is obviously the ASHA workers and ANMs. They helped, daily they used to come to the village, daily they used to go to each and every house to note down the details, or to tell about, to bring awareness about the virus, and is there any new person who came from the Hyderabad, do anyone have symptoms? So they worked a lot in this pandemic situation. Right. I think the next question is, मैं जयंती जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये जो रिसोर्सेज हैं, आपने खाना वगैरह की बात की है, रिलीफ का सामान जो है वो लॉकडाउन के दौरान उसको कैसे मेंटेन किया कि वो इक्वल तरीके से, या इक्वल नहीं, इक्विटेबल रादर, की मतलब अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके पास सही
अमाउंट में सही नहीं, उसमें हाँ, पहुंच ज्यादा पाए। जरूरत इस, हाँ हाँ, वो समझना कि शायद इन जगहों पे मैं ऐसे ऐसा, काम करना है, वो कैसे किया आपने, ये सवाल है। ये जो हमें एक्चुअली कुछ रिलीफ जैसे आईओसीएल से मिला था, कुछ रिलायंस से मिला था, कुछ हमने कलेक्ट किया था कहीं कहीं से, तो हमने पहले कुछ बैठ के हमें इसे पैकेट किया, इतना 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 सामान देना है। अगर जहीं पे हम देखा कि यहाँ बिल्कुल नहीं है, फिर हमने डिसाइड कर लिया, 2-4 बैठ के डिसाइड कर लिया इस गांव से नहीं है, उसको हम ज्यादा पहुंचाते हैं, तो ऐसे ही किया, सोलह मशवरा करके, अपने आप में सोलह मशवरा करके कि ये गांव में ज्यादा चाहिए, ये बंदे को ज्यादा चाहिए, ऐसे किया। जी जी। और हाशमा जी, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे है। ये हमारी जनता में से किसी ने पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान जो डोमेस्टिक वायलेंस है, मुझे पता है आपने शायद आपने बात की थी इस बारे में, इसीलिए ये सवाल भी आया है कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने, या अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसको कैसे मतलब उसको उस क्या स्टेप्स लिए, मतलब उनको आपने कैसे अप्रोच किया, या आपने आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या किया उसके तरफ? अगर कोई एक अनुभव हो जो आप हमें बताना चाहें तो प्लीज बताइए। और आपका माइक अभी भी म्यूट है, तो मैं एक बार आपको अनम्यूट करने की कोशिश करूंगी। ये अगर आपको आवाज ठीक से आ रही है, ये यहाँ पे एक बटन होता है, वो अगर गलती से दब जाए कई बार तो म्यूट। हाँ, अब ठीक हो गया जी। सर सुनाई दे रहा है सर? जी 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 जी, क्या क्या पूछना है सर, बोलिए ना। जी जी। तो सवाल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो घरेलू हिंसा की बात है, आपने पहले भी मेंशन किया था कि अगर किसी घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको किस तरीके से आपने संभाला, या क्या स्टेप्स लिए? कोई अगर एक एग्जाम्पल हो जो आप देना चाहें, कोई भी अनुभव बताना चाहें हमारी जनता को। जी, घरेलू उस में जब लोग का घर में मामला झगड़ा माने हो रहा था, तो उसी में हमारा पता चला, तो वहाँ पर गए तो जी बोले कि जब तक जानिए कि पैसा होता है तो दाल मछली गोश्त मीट चावल सब कुछ बनाकर लोग खाता है, नहीं जितना हिसाब से पैसा है, जितना हिसाब से अनाज पानी है, उतने में अपना बनाकर अपना अच्छा तरीके से खाओ, मिलजुल कर लोग रहो। नहीं हुआ तो 5 आदमी के अगल बगल के माई बहनी है, उनका के बुला करके उन लोग को समझाए बुझाए घरेलू हिंसा के बारे में कि अपना साथ में रहिए लोग, अपना खाइए पिए लोग, अच्छा ढंग से कीजिए लोग, अपना चूल्हा चौकी जलाइए लोग। दूसरा यही बात है कि अपना माने जो चीज है जितना अपना बनाकर अपना खाइए पीजिए, उन लोग को समझाए बुझाए। जी, आपको कहीं पे ऐसा ज्यादा बढ़ गया हो हिंसा और आपको कोई ऐसा कदम लेना पड़े, पुलिस की मदद लेनी पड़े या किसी की, ऐसा भी हुआ क्या? माफ करिएगा, आपको सुनाई दे रही है आवाज? इसको दबाएंगे तो आवाज आने लगेगी, आपका शायद म्यूट हो गया। जी 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 सुनाई दे रहा है सर? जी 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 जी। पहले सर हम लोग समझाएं, उन लोग के समझाएं, नहीं समझ पा रहा है लोग तो किस 5 आदमी के उठा करके, जो माने अगल बगल में जो माई बहनी होते हैं उन लोग के बुला करके समझाए बुझाए। नहीं माना लोग तो हम लोग भी पंचायत स्तर पर भी बैठा करके उन लोग के समझाएं कि इसको बात के समझो, इसमें हर लोग की भी परेशानी है, मजबूरी है। तो बोल रहा है कि हमारा भी राशन मिल रहा है, हमारे ऊपर पट्टी परदार के मामला जानबे करते हैं, कितना होता है तो परदार लोग में तो लड़ाई झगड़ा होबे करता है। तो उन लोग के समझा बुझा करके हम लोग फिर भी उन लोग के मना दिए, मान गए लोग, ऐसा बात नहीं है कि नहीं माना। लेकिन बोल रहा है कि हाँ एक आदमी के राशन कार्ड आ गया हमारा नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले सर हम लोग तो ये कहेंगे कि जो जितना। माफ करिएगा, आपका ये बटन दब गया फिर से, शायद आपकी आवाज रुक गई। ये बटन दबाना पड़ेगा आपको, ये बटन दबाना पड़ेगा आपको हाशमा जी। जी 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 लॉकडाउन की वजह से जी बहुत लोग माने लड़की की अपना बोल रहा है कि हम लोग अब तो पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ है, अब तो हम लोग शादी कर देंगे कमे उम्र में, अब तो 18 पुगा ही नहीं है, लोग 15-16 पर शादी करने के लिए लोग तन गया। तो 2-4 आदमी के हम लोग समझाएं कि देखो
आज सब दिन कोरोना महामारी नहीं रहेगा, सब दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा, अरे 2 साल बादे होगा, लेकिन लड़की की जो पढ़ाई पूरा करना है उसको पढ़ा लिखा करके पूरा कर दो। सब दिन तो ऐसा ही ना सरकार रखेगा, सब कुछ अब तो जरूर लॉकडाउन खुल जाएगा, पढ़ाई होगा, पढ़ाई लिखाई होगा, तो उन लोग के भी हम लोग शादी करने से मना किया कि बच्चा है, अभी उम्र नहीं हुआ है शादी करने के, उनको अभी शादी मत कीजिए। उन लोग के भी माँ बाप को भी सूचना दिए, जितना तक मेरे हमारे नजदीक समझदारी आया, जितना हम लोग समझाए बुझाए, नहीं माना लोग तो 5 आदमी से मना रहे हैं। जैसे भी अब सब बात आपसे हम लोग बताइए रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग किए। जी 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 धन्यवाद जी। आप और कुछ बोल रही हैं? जी, मुखिया जी से जाकर, मेरे गांव में मुखिया जी हैं तो उससे बोले कि हाँ हमारा पंचायत वो दब गया है जी। जी सर हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग का कहने के यही मतलब है कि सबसे पहले जानबे करते हैं राशन कार्ड का ज्यादा जरूरी है। अब पंचायत स्तर पर काम मजबूती से होना चाहिए, माने जागरूक में होना चाहिए। क्यों? तो लॉकडाउन की वजह से पंचायत का काम बहुत रुक गया है सर। जी 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 थैंक यू धन्यवाद। आपने जो बातें कही हैं मुझे लगता है ये काफी जरूरी है। मतलब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है या राशन कार्ड है, ये भी इनफैक्ट ये सब भी हमारे सुझाव में जाना चाहिए और जाएगा, कि ये भी काफी जरूरी चीजें हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। माफ करिएगा, समय की कमी की वजह से हमें सवाल तो बहुत आए हैं, शायद हम उन सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ सवाल जो हैं वो शायद बाद में भी एक बार आप लोगों से पूछ के उन सवालों का जवाब दे पाएं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से दैट एज आई समराइज एंड रैप अप, आप सभी अपना फीडबैक भर सकते हैं फॉर्म, जिससे कि हमें पता चलेगा दैट अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन एनीथिंग। ऑल्सो हमारे सोशल मीडिया के लिए आप @WGH India, @WFPSASIA एंड @C3, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मिलके आपके लिए ये पैनल पुट किया है, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे बारे में और जानकारी लेने के लिए, या हमसे और सवाल पूछने के लिए। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। और मैं सभी हमारे मेंबर्स जो हैं, जो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, उनकी तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे साथ 2 घंटे बैठकर इन बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए। जो भी श्रोताएं हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने सवाल रखने के लिए, हमें सुनने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो हमारे दिक्कतें, जिन्होंने हम चाह रहे हैं कि ये जो ज़मीनी स्तर पे जो दिक्कत हैं, या जो अच्छी चीज़ भी हैं जो बाकी लोग सीख सकते हैं एक दूसरे से, वो बातें हम आगे बढ़ा पाएं, वो बातें हम इन इन ऑनलाइन, अब कोरोना में तो हम मिल नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम ऑनलाइन, जो भी जिन लोगों के पास इंटरनेट है, अनफॉर्चुनेटली सबके पास इंटरनेट भी नहीं है अब, तो जिन लोगों के पास है एटलीस्ट वो सुन पाएं और वो इस बारे में कुछ कर पाएं। और मैं एक क्विक समरी देना चाहूँगी कुछ 1 आधे मिनट में, कि हमने आज 3 बहुत ही इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाली महिलाओं से बात की है जो ग्राउंड लेवल पे बहुत काम कर रही हैं। उनमें से एक हमारे पास एक यंगेस्ट सरपंच हैं, एक हैं जो पुलिस के डंडे से भी नहीं डरती हैं, और उन्होंने जाके फिर भी बिना एम्बुलेंस के भी कई बार महिलाओं को मेडिकल सर्विसेज पहुंचाई है। एक हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाती हैं कि आशा के साथ काम करना, और ये सारे लोगों को
बढ़ा के काम करना कितना ज़रूरी है, और अपने डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स के कई बार सहयोग ना देने पर भी उनसे बात कर कर चीज़ों को जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनके लिए काम किया है, खाने का व्यवस्था की है, सब तरीके के बंदोबस्त किए हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो हमने इस डिस्कशन के दौरान जानी। तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। आई ऑल्सो सल्यूट आप सभी के करेज को, आप सभी के काम को, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द टीम एंड especially Women and Global Health, who's the organizer of this event, I would like to just thank you, applaud you, and I hope we are all connected. हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे. Thank you audience, and I'm really sorry for not being able to take up all the questions. हेलो जी हाशमा जी बोल रहे हैं कि आज हम लोग के सब मिलकर बहुत खुशी की बात है आज का माने कार्यक्रम का। आपको श्री के हम लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। मैं भी टू बी ऑनेस्ट मैं सभी का धन्यवाद एक और चीज़ के लिए देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सालों बाद शायद इतनी हिंदी में बात की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं हिंदी में बात कर पाई। एनीवन एल्स, अगर आप किसी को भी और कुछ कहने का मन करे तो हम शायद एक आधा मिनट और लेके बात कर सकते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स, फ्रॉम हमारे पैनल। Thank you, Sugandha. Thank you, all of you. Thank you so much for giving the opportunity. These kind of events gives us more energy and it boosts up our confidence. Thank you so much. Thank you, Preeti. Thank you, Sugandha. Thank you, all of you. Thank you. Bye. WGH टीम से या WFP टीम से कोई बोलना चाहेगा? I saw one hand is up because हम टाइम पर ख़त्म कर पाए हैं, तो मुझे लगता है शायद हम वो ले पाए। आदित्य राज जी, would you like to unmute yourself and say? I see उनका हाथ ऊपर है। I think if not, we can wrap up. Is there anyone else who is there? Okay, thank you again. Thank you very much for sitting 2 घंटे हमारे साथ बैठने के लिए. We just hope कि हम आगे भी ऐसी voices जो ज़मीन से हैं उनको आगे ला पाएं. Thank you everyone, especially हाशमा जी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हमने उन्हें 2 घंटे बैठाया, तो माफ़ी उसके लिए, और thank you again and everyone. I think we can close the meeting now and stop recording.